So today we are going to continue our previous chapter, that is chapter number 2, is matter around us pure. So already we discussed what is mixture and homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now we are going to discuss, that is what is solution, suspension and colloidal solution. What is solution, suspension and colloidal solution? That is solution, suspension and colloidal solution. Okay, what is solution, suspension and colloidal solution? So for discussion these topics we have to first discuss one activity. हमें एक activity discuss करनी so that we can come to know what is solution, suspension and colloidal solution. So let's have an activity. Again, in this activity we have to divide 4 groups, that is group A, B, C and D. These are the 4 groups. Okay, now we have to distribute the following. We are having different type of samples that we have to distribute in this group A. Group A को हम देते हैं, we have to give group A crystal of copper sulfate, few crystal of copper sulfate, crystal of copper sulfate. Okay, now for group B, group B को देते हैं one full spoon of copper sulfate, 1 full spoon copper sulfate. And group C को हम देते हैं chalk powder and wheat flour, chalk powder and wheat flour. Okay, now group D, is having few drops of milk or ink, few drops of ink, milk and ink, few drops of milk and ink. Okay, these are the things that we are going to distribute to the 4 groups. First group consists few crystals of copper sulfur solution, second group consists 1 full spoon of copper sulfate, and third group consists chalk powder and wheat flour, and fourth group consists few drops of milk and ink. Now we have to, each group should add the given sample in water and stir properly. अब क्या करना है, हर सैंपल को हमें each group add the given sample in water and stir properly. Okay, each group add the given sample and in water and stir properly. Okay, now after some time we have to observe the observation. What type of observation we can get in this, like when we are going to add this type of sample in the water. So let's take what type of observation we can see when we are going to mix these samples in the water.
So direct a beam of light or a torch. Now we have to do one practical. What we have to do, हमें चेक करना है कि वो वाटर में जो पार्टिकल से इजीली डिज़ोल्व हुए हैं या नहीं हुए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीम ऑफ लाइट हम डायरेक्ट करेंगे थ्रू द बीकर। जिस बीकर में हमने वाटर और सैंपल को मिक्स किया है, डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट, उससे हम एक बीम ऑफ लाइट को डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट through beaker. Suppose कीजिए we are having this beaker. ओके ये हमारा बीकर है, इसमें वाटर है और इसके अंदर हमने सैंपल्स डाल दिए हैं। तो यहाँ पे एक लाइट की बीम को हम स्प्रेड करेंगे ताकि हमें आउटसाइड में सॉल्यूशन किस टाइप का है वो समझ में आ सके। इस तरीके से हमें एक बीम को डायरेक्ट करना है, बीम ऑफ लाइट को डायरेक्ट करना है बीकर के थ्रू। सो डेट कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल और नॉट। नाउ अब क्या करना है, उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देना है। अब हमें चेक करना है किस मिक्सचर में हमें क्या मिलता है। सपोज करो ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। जो ए एंड बी जो ग्रुप है उसको क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है जो कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ओके, देन सी को मिलता है सस्पेंशन एंड डी को क्या मिलता है, डी को मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये क्या है, एक्चुअली ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बीकर में हम इन सारे सैंपल को मिक्स करते हैं। सपोज़ करो ए था, तो ए में क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था। तो कॉपर को अगर हम इसमें वाटर में मिक्स करते हैं तो ईजिली पूरे उसमें इवनली मिक्स हो जाता है। जब हम उसके थ्रू एक बीम को लाइट को ट्रेवल कराते हैं तो वहाँ पे आउटसाइड में भी सेम लाइट निकल के आती है। तो इसको हम प्रॉपर सॉल्यूशन बोलते हैं। But when we are going to mix chalk and that what we taken wheat float, तो वहाँ पे particles नज़र आएंगे, वो मिक्स नहीं हुए होंगे। तो जब वो बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी तो वहाँ पे एग्जैक्टली अच्छे से नज़र नहीं आएगी, वो बैंड हुई नज़र आएगी या ब्लर नज़र आएगी। थर्ड इज़ मिल्क या फिर इंक, उसको हम डालते हैं मिल्क, वो मिक्स तो हो रहा है बट उसका जो कंपोजिशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा, कि दैट मीन्स पार्टिकल तो मिक्स हो गए बट उसने उसके कंपोजिशन को चेंज कर दिया, उसके कलर को चेंज कर दिया। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। सो सबसे पहले अब हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। So let's start. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Okay, what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Now we can you come across various types of solution in your daily life. लेमनेड, सोडा वाटर, हम लोग ये सब चीज़ें घर पे बनाते हैं, लाइक लेमनेड बनाते हैं, सोडा वाटर बनाते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड सॉल्यूशन। इज इट सो और नॉट? इन सबको सॉल्यूशन ही कहा जाता है। ठीक है, सो यूजुअली वी थिंक अ सॉल्यूशन और अ लिक्विड कंटेन्स ईदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम अधिकतर ये सोचते हैं कि सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मिक्स होते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। नाउ वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसेज सॉल्यूशन। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन और गैसेज सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन होता है एलॉयज, सॉलिड सॉल्यूशन को कहते हैं एलॉयज, एंड गैसेज सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या है, एयर बोलते हैं। Solution means air. Gaseous solution is air. Okay. Now, in a solution there is a homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. अब यहाँ पे
होमोजीनिटी होती है पार्टिकल्स के अंदर। मतलब जब हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक जैसे टेस्ट का होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट। इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सॉल्वेंट एंड एक आता है सॉल्यूट। एक आता है सॉल्वेंट और एक आता है सॉल्यूट। क्या है एक्चुअली सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है? सॉल्वेंट होता है कि सॉल्वेंट का मतलब होता है अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब जिस जो कंपोनेंट होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है जिसके अंदर मिक्स किया जाता है। सपोज करो हमने वाटर लिया है और हमने शुगर ली है, शुगर पीसेस लिए हैं, शुगर के पीसेस। ओके, नाउ दिस इज़ वाटर। तो वाटर इज़ कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं। बट जो शुगर है जो कम क्वांटिटी में लिया जाएगा, जो इसके अंदर मिक्स होने जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सॉल्यूट कहा जाएगा। तो इससे आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we can discuss after this how many examples we are having. Now examples of solution is like solution of sugar in water is a solid in liquid solution. सबसे पहले sugar in water, sugar in water, it's a what type of solution is this? It's a liquid solution. इसको हम liquid solution बोलेंगे, liquid solution. ओके, नाउ सेकेंड वन इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। मतलब आयोडीन को हम किस में मिक्स कर रहे हैं? अल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं। इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। इसको क्या कहा जाता है? टिंचर ऑफ आयोडीन। इसको कहा जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन कहा जाता है, राइट? इसको टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। तो एज द सॉलिड एंड अल्कोहल एज द सॉल्वेंट। सो यहाँ पे इसको कहा गया है टिंचर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन इज द सॉलिड एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर की बात करते हैं तो सोडा वाटर के अंदर भी सोडा और वाटर को मिक्स किया जाता है, ठीक है? और गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसको बोला जाएगा गैस इन लिक्विड। गैस को किस में मिक्स किया जा रहा है? लिक्विड में मिक्स किया जा रहा है। तो गैस इज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड इज अ सॉल्वेंट। ओके, नाउ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। सो अगर हम एयर की बात करें तो एयर कैसा मिक्सचर है? गैस इन गैस, गैस इन गैस का मिक्सचर है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की गैसेस डिफरेंट टाइप की गैसेस में मिक्स होते हैं। एक दूसरे में काफ़ी सारी गैसेस मिक्स होती है, उसको हम एयर बोलते हैं। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। सो वी डिस्कस स्टूडेंट्स 4 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स। लाइक फर्स्ट वन इज़ वाटर लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करना है, तो शुगर यहाँ पे सॉलिड होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। फिर आयोडीन को अल्कोहल के अंदर मिक्स करना है, दैट इज़ आयोडीन इज़ द सॉल्यूशन एंड अल्कोहल इज़ द सॉल्वेंट। देन सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर की बात करें तो गैस इन लिक्विड होगा। देन एयर है, तो एयर के अंदर गैस इन गैस होता है, गैसेज ही होती हैं एयर के अंदर, दैट्स वाई वी कॉल इट गैस इन गैस। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सॉल्यूशन की, इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले तो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये। It's a homogeneous mixture. Okay, second property is the particles of a solution are smaller than 1 nm in diameter. Particles of a solution is smaller than 1 nanometer. Okay,
so they cannot be seen by naked eyes. So they cannot be seen by naked eyes. हम नॉर्मल आइज से इनको नहीं देख सकते. थर्ड वन इज द सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर. सॉल्यूट particles cannot be separated from the mixture. जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसको मिक्सचर से सेपरेट नहीं किया जा सकता. जो सॉल्वेंट के अंदर हम सॉलिड को मिक्स करते हैं उसको हम अलग नहीं कर सकते. सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द टुडे. हम लोगों ने आज सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के एग्जांपल, व्हाट इज सॉल्यूशन, उसके बारे में बात की. और ऑलरेडी वी डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वी आर हैविंग. लाइक हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, एक हमारे पास होता है सस्पेंशन होता है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है. तो हमने उसको एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द टुडे. फॉर द नेक्स्ट सेशन, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर.